Okay, hello and welcome to my YouTube channel Sarju Tutorials. In our today's video, we will talk about structures of igneous rock. Okay, before telling you about the structures of igneous rock, let's have a quick recap about what are igneous rock. So at first, the word igneous is right from the Latin word ignis, which means fire. Okay, the word igneous is right from the Latin word ignis, which means fire. Okay, there are various ways in which we can define the classification and formation of igneous rock. But right now I'm telling you a way which is useful in this particular video. So अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो igneous rocks को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं as one that are formed up on the surface, जो surface के ऊपर बनती हैं, that are called extrusive igneous rock. उनको हम कहते हैं extrusive igneous rock. And one that is formed beneath the surface या under the surface, that are called as intrusive igneous rock. Okay, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे वीडियो में हमारा यूज आएगा. जो सरफेस पे फॉर्म होती है उसे एक्सट्रूसिव एक्सट्रैक्ट हो जाता है लावा, उससे बनती है, तो ये होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. एंड वन जो अंदर ही रहती हैं, इंट्रूड रहती हैं, तो होती है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ओके, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक की. द स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक कैन बी डिफाइंड एज लार्ज स्केल फीचर्स विजिबल ऑन अ रॉक. ठीक है, स्ट्रक्चर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लार्ज स्केल फीचर्स विजिबल ऑन अ रॉक. ओके, तो दीज आर लार्ज स्केल फीचर्स. तो ये अगर लार्ज स्केल हो जाएंगे तो अगर हम यहाँ बोलेंगे स्मॉल स्केल, then small scale will represent textures. ठीक है, small scale features on a rock that will represent textures, and whereas large scale features they will represent structures. ठीक है, so तो large scale features visible on a rock that are called as structures, and they depend upon certain factors. ये कुछ factors पर depend होते हैं. They depend upon certain factors. इधर मैं बताता हूँ. ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं. अब वो फैक्टर्स क्या होते हैं? एक छोटी सी ट्रिक बनाइए, उससे हम याद रखने की कोशिश करेंगे उसको. दीज आर सीवी टीपी. दीज आर सीवी टीपी. मैं आपको बेटर के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं. ठीक है, सी वी टी पी. सो सी मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्मा. C means मैग्मा की क्या कंपोजिशन है उसके बारे में. C means composition of magma. V means viscosity of magma. V means viscosity of magma. T means temperature and pressure at which. C means cooling and consolidation. Cooling and consolidation takes place. ठीक है, temperature and pressure at which cooling and consolidation takes place. And then P means presence of gases and other volatiles. Okay, so these are factors. What are factors? Composition, that is CVTP. C means composition of magma. V means viscosity of magma. T means temperature and pressure at which cooling and consolidation. Cooling means ठंडा होना, consolidation मतलब co-solidation, मतलब एक साथ आके solid होना. ठीक है, तो वो हो जाता है consolidation. And then P means presence of gases and other volatiles. Okay, तो ये बात हो गई हमारे factors की. अब अगर हम structures की बात करें, पहले तो अपनी normal life में देखते हैं, तो अपनी हम normal life में भी हमको तीन तरीके के structures दिखते होंगे. एक large scale structures, एक medium structures और एक माइनर या फिर स्मॉल स्ट्रक्चर्स. तो हमारे जो जियोलॉजी है इसमें भी जो इग्नियस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी तीन तरीके के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? या फिर इनको तीन ग्रुप्स में बांट सकते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्स, थ्री ग्रुप्स. कौन कौन से होते हैं ये? सबसे पहला तो मेगा स्ट्रक्चर. एसटी मतलब स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है, देन सेकेंड इज माइक्रो स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये मीडियम वाले की बात हो जाएगी. और थर्ड इज माइनर स्ट्रक्चर्स. तो तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेगा स्ट्रक्चर्स, माइक्रो स्ट्रक्चर्स और माइनर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, टाइम वेस्टिंग करते हैं, सीधे हम मेगा स्ट्रक्चर्स पे आते हैं. ओके, मैं ये सब रख कर रहा हूं. ओके, तो अगर हम बात करते हैं मेगा स्ट्रक्चर्स की, मेगा
structures. So megastructures. Okay, megastructures are formed during the flow stage of magma. ठीक है, जब magma flow जब लावा बाहर आता है फ्लोइंग स्टेज में ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. ठीक है, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में बनते हैं. ठीक है, these are formed, megastructures are formed in extrusive igneous rock. जो लावा बाहर आ जाता है इरप्ट होने के बाद उसमें ही बनते हैं और ये फ्लो स्टेजेस में ही बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स जो ऊपर बात की थी. कंपोजिशन ऑफ लावा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लावा कैसी है, देन उसमें टेम्परेचर और प्रेशर उसका कैसा है. ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ गैसेस अदर वोलेटाइल्स हैं उसमें. इन बातों पे डिपेंड करते हुए ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं. ठीक है, तो उसके बेसिस पे कई तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं. तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको भी याद करने के लिए छोटी सी कोडिंग मैंने बनाई है, दैट विल हेल्प यू. दिस इज चेंजिंग द मार्कर VC. फ्रेंड्स जिससे एक वर्ड आएगा वो मैं कैपिटल लिख रहा हूं. ठीक है, VC लैब में RP SP CF से मिले. ओके, VC लैब में RP SP CF से मिले. ओके, अब ये क्या है, VC लैब में RP SP CF से मिले. इसको डिकोड कर रहा हूं, वेट करो. तो V से थोड़ा सा नीचे करके लिखूंगा. V से वैसी, सॉरी थोड़ा और नीचे लिख देते हैं ताकि बाकी भी लिखने में आसानी रहे. यहाँ पे लिख रहा होगा. ठीक है, V से vesicular and ambigoidal structure. Ambigoidal structure. Okay, V से vesicular and ambigoidal structure. C से, देन हमारी C से बात करें तो cellular structure. C से cellular structure. ठीक है, या फिर इसको हम स्कोरेशियस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं, स्कोरेशियस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. ठीक है, बी से वेसिकुलर या एम्बिगॉइडल स्ट्रक्चर. सी से हमारा